Morning, everybody. Brothers and sisters, we'll be continuing what we heard last week. जो पिछले हफ्ते हमने सुना वही हम कंटिन्यू करेंगे आज, Because the third condition was still left last week. क्योंकि जो तीसरा शर्त है वो बाकी था. Okay, so I'm calling this title of today's message as Called to be a Disciple of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के शिष्य बनने का बुलावट. So a small recap of what we heard last week. जो पिछली बार हमने सुना उसको मैं सारांश में बताना चाहूँगा. Brothers and sisters, I believe that this is a very important topic. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. And what is a convert? A convert is to change from one form or system to another. जो कन्वर्ट का मतलब है कि एक जो प्रथा है या शैली है उससे परिवर्तित हो जाना, परिवर्तन होना. Then what is a believer? और विश्वासी क्या है? Anyone who holds a strong belief in the truth of something is a believer. जो कोई भी किसी सत्य के ऊपर मजबूत विश्वास रखता है वो उसे विश्वासी कहा जाता है. What is a disciple? और शिष्य का मतलब क्या है? A person who follows a teacher. एक व्यक्ति जो किसी गुरु के अनुयायी हो. And the word disciple can also mean a student, a learner, or a follower. और जो शिष्य है उसका ये भी अर्थ हो सकता है विद्यार्थी, सीखने वाला या अनुयायी. So brothers and sisters, we all have been converted. Some of us from some denomination to true Christianity. Some of us from another religion to Christianity, and so on. So we go, yeah. भाइयों और बहनों, हम सब का के जीवन में परिवर्तन हुआ है. कुछ लोग जो हैं जो पुरानी प्रथा और उनमें से परिवर्तन हुआ है. कुछ लोगों का दूसरे धर्म से यीशु मसीह के विश्वास में आकर परिवर्तन हुआ है. And we can say we are believers because we believe in the Lord Jesus with all our heart. और हम यीशु मसीह में पूरे दिल से विश्वास करते हैं, इसीलिए हम विश्वासी भी बुलाए जाते हैं. But now the question is whether we are a disciple. अभी प्रश्न ये है कि क्या हम शिष्य भी हैं? Disciple is one who follows the teacher, and our teacher is the Lord Jesus Christ. जो गुरु के अनुयायी है वही शिष्य है. और क्या हम यीशु मसीह के अनुयायी या पीछे चलने वाले हैं? So it is important for us not to stick to just being a convert and a believer, but to follow Jesus as his disciple. ये बहुत ही महत्व रखता है कि हम सिर्फ हमारा जीवन परिवर्तित होकर हम एक विश्वासी ना बने, लेकिन हम साथ साथ में एक जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शिष्य भी बने. So the call to disciple, to being a disciple, is very strong in the Word of God. और जो बुलावट है शिष्य बनकर यीशु मसीह के पीछे चलने का, वो बहुत ही एक जोरदार बुलावट है. So Luke chapter 6 verse 40 it says, a student is not above the teacher, but everyone when he has been fully trained will be like his teacher. और लूका 6:40 में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा. So we are also in that this thing of we are taking the training
of becoming more and more like Christ. और हमें भी ऐसे सीख मिल रही है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें, So that is being a disciple. और यही है शिष्य बनने का मतलब. And the disciples were first called Christians at Antioch. जो पहली बार जो शिष्य थे वो क्रिस्ती अंतियोक में बुलाए गए. So it was the disciples who were called Christians. जो शिष्य थे वही क्रिस्ती बुलाए गए. And in John 2, 1 John 2:6 it says, if we say we are abiding in him, then we must walk as Jesus walked. और जैसे कि पहला यूहन्ना 2 के 6वें वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था. And then in 1 John 4:17 it says, because as he is, so are we in this world. और पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 17वां वचन 4:17, इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन किया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं. So our calling, you can see clearly, is not just to believe in Jesus, admire him, and say that he is my God and that's it. No. It says, he who says he abides in him must walk as Jesus walked, and as Jesus is, so are we in this world. और हम इन वचनों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा बुलावट का मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, लेकिन जैसे यूहन्ना में कहा गया है कि हमें वैसे ही चलना है जैसे यीशु मसीह थे इस दुनिया में, और तभी हम उनके शिष्य बन सकते हैं. So there were many people during the time of Jesus who were following him, were behind him. There were multitudes of people. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे ऐसा एक बहुत बड़ा झुंड था जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे. Huge crowds. बहुत बड़ा झुंड. Okay. So, but then on one of the occasions, he turned back to the people and said these words which we have been considering in Luke chapter 14, verse 25 to 35. और एक बार यीशु मसीह मुड़कर इन लोगों से ये बातें कही जो हम लूका 14 अध्याय और उसका 25वें वचन में देखते हैं. So we saw last time the two conditions from verse 26. The first condition of discipleship that Jesus said was to love God more than our father, mother, wife, children, brothers, sisters, and even ourselves. That is, otherwise we cannot be his disciple. और हम 26वें और 27 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये शर्त दिया कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता. So what does this mean? We know that what this means is that if anything our parents or our brothers or sisters, wife and whoever tells us to do which is not in line with the word of God or not his will, then when we don't do it because of our love for Christ, then it shows we love God more than all these people. अगर कोई हम में से इनमें से कोई जैसे हमारे माता पिता या पत्नी या बच्चे भाई बहन हमसे जो वचन के अनुसार नहीं है ऐसे कुछ बातें करने के लिए कहे और हम उससे मना कर दें क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और जो वो कहते हैं उसके पीछे हम चलना चाहते हैं, तो ही हम उनके शिष्य बन सकते हैं. But if we compromise because of our affection for our father and mother and our relatives, we compromise God's standard,
then Jesus says we cannot be his disciple. लेकिन क्योंकि हम अपने माता पिता या अपने जो रिश्तेदार हैं उनके कहने के कारण हम ऐसा समझौता कर लेते हैं और यीशु मसीह जो कहते हैं उसे हम भूल जाते हैं, तो हम उनके शिष्य नहीं बन सकते। Then the second one was verse 27, that we must carry our own cross and follow Jesus. और 27वें वचन में दूसरा शब्द दिया है कि और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Yeah. So we considered that last time. And what is the cross? The cross is when we do anything voluntarily, and we do it, though it is painful and though it is difficult, but we do it joyfully, voluntarily and joyfully, because with the help of Jesus, the Holy Spirit, then that is taking up the cross. और जब भी हम किसी बात को करते हैं जो हमारे लिए दर्दनाक है और हमें परेशानी देती है, लेकिन हम अपनी स्व इच्छा से उसे करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो वही क्रूस उठाना हुआ। So we must be clear about what is a cross, because many times people think, that any difficulty which comes to them, or any sickness or any difficult person, they say, this is my cross. इस बारे में हमें साफ साफ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब कोई जो कठिन व्यक्ति या कठिन परिस्थिति या कोई बीमारी जो हमारे जीवन में जिंदगी में है, तो हम उसे क्रूस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। And so when any difficulty is there, when any difficult person is there, and we start grumbling about it and say, this is a cross I have to bear, that is not at all the cross of Jesus Christ. अगर कोई This is not at all our cross which Jesus has called to bear. और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे जीवन में या कोई परिस्थिति है जिसके कारण हम कुड़कुड़ाते हैं और हम सोचते हैं कि यही मेरा क्रूस है, तो ये सच नहीं है। So when Jesus took his cross, he was very painful, everything was there, but he chose it voluntarily. He was praying in Gethsemane, and he said, Lord, if it is your will, I will do it. और जब यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया तो उन्होंने अपनी स्व इच्छा से ये किया। वो बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि पिता, अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। And when he was taking up his cross, he was having the peace. He was telling the people who were weeping, weep for yourself. And he was, even at that time he could say that my joy I give to you, because he was taking up his cross voluntarily. और जब वो इस बात से गुजर रहे थे, तब भी उन्होंने लोगों जो उनके लिए रो रहे थे उनसे कहा, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो। और उन्होंने अपना जो आनंद है वो भी उन्होंने उनको दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्व इच्छा से ये जो क्रूस है उसे स्वीकार किया। There was not a single trace of complaint, but he only said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. और उनमें ऐसा कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। So brothers and sisters, taking up our cross is something which we will learn to love, because of the same joy that Jesus had. It says, for the joy that was set before him, he endured the cross. और जैसे वचन में कहा गया है कि उन्होंने जो आनंद उनके सामने रखा हुआ था, उसके कारण उन्होंने वो जो क्रूस था उसको सहा। वैसे ही उस आनंद के कारण जो हमारे सामने है, हम उसको सह पाएंगे। So that is a thing. Just like Jesus took the cross, we have to follow him as his disciple. और जिस प्रकार यीशु ने खुद अपना क्रूस उठाया, वैसे ही हम उनके शिष्य हैं, इसीलिए हमें भी अपना क्रूस उठाना जरूरी है। And it, brothers and sisters, is not something which is, when we really know what
taking up our crosses, we will joyfully do that. और अगर हम इस प्रकार समझ पाएं कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, तो हम आनंद से उस क्रूस को उठा पाएंगे. So now today we come to the third part, which is a very challenging one. और आज हम वो जो तीसरा शर्त है उस पर आएंगे, जो एक बहुत ही चुनौती देता है हमें. That is written in verse 33. और वो जो है 33 लूका 14 का 33 में लिखा है. So therefore no one of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता. Jesus told this, and do you think that he just preaches what he has followed? और यीशु मसीह ने ये कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उसी बात का प्रचार करते हैं जिसका उन्होंने प्रायोगिक रूप में अपने ही जीवन में किया हो. Jesus gave up all. First of all, he gave up all. और यीशु मसीह ने अपना सब कुछ त्याग दिया. In Philippians 2 verse 7, it says he emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of man, and found in the appearance of man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. So Jesus, who was God, he emptied himself and came in the form of man, and like a bondservant, he lived in this earth. फिलिपियों दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. So now, what are our possessions? हमारी जो संपत्ति है वो क्या है? The things that we value most are our possessions. और जिन चीजों को हम बहुत ही कीमती मानते हैं, वो ही हमारी संपत्ति है. Just to find out like what is important for us, we can take an example that our house is on fire. Okay. और उदाहरण के लिए हम सोचेंगे कि अगर हमारा जो घर है उस पर आग लग गया हो, and as it is burning, we have got a little time to take out, retrieve some of the things which are in a short time. और उस समय में हमें अपने घर से कुछ चीजें निकालने का वक्त मिलता है. So we will go there and take the most important things. और हम वहां जाकर उन्हीं चीजों को उठाएंगे जो हमारे लिए कीमती. If any of our family members there, we will take them out first. और अगर हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, तो हम उन्हें पहले निकालेंगे. Maybe a father or mother, or maybe some children or wife, we will drag them out first. चाहे वो हमारे माता पिता हो, पत्नी हो या बच्चे हो, हम उन्हें पहले निकालेंगे. Then maybe we will some important documents, maybe our bank balance, bank documents, or maybe some shares, or we will go and pull them out. और बैंक में जो भी रखा है वो उसका किताब या जो भी हमारे लिए जो हम कीमती समझते हैं, जैसे शेयर का जो पेपर है, ऐसे चीजों को हम बाहर निकालेंगे. Some computer, for those who consider computer as something, or those any other thing which is very valuable, they are valuable to us. जैसे कोई कंप्यूटर या लैपटॉप जो है, इन सब चीजों को जो भी कीमती समझता है वो उसे पहले निकालेगा. So when we think about our possessions, we must go through all the things that come to our mind which the Lord shows us. तो जो भी प्रभु हमें, जब हम अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं, जो भी प्रभु हमें याद दिलाते हैं, उन सबको हमें मान लेना चाहिए. Because Jesus says, who does not give up all his possessions, not one or two, but all his possessions. क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी अपने सारे संपत्ति त्याग न दे, वो एक या दो संपत्ति नहीं, लेकिन सारे संपत्ति के बारे में कहते हैं. So as we go through all one by one and say, Lord, this one,
and we say, Lord, all this I laid on the altar. और अगर हम सारी संपत्ति के बारे में सोचें और हम प्रभु से कहें कि मैं इन सब को आपके I give मैं it to you. समर्पित I give it to you. I take. I'm not the owner of this. I may make you the owner. मैं समर्पित करता हूँ और आपको उसका जिम्मेदार मानता हूँ. In other words, I surrender all these things. और इसका ये मतलब है कि मैं इन सब चीजों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ. Then we go through the whole list and nothing more is left. और हम उस सारी जो सब चीजों का हिसाब लगाते हैं और कुछ भी नहीं रह जाता. Then that is the time when we can say I've given up all my possessions. I've surrendered fully. तभी हम कह सकेंगे कि हमने अपनी सारी चीजें हमने त्याग दी है. In other words, it is giving up our ownership or the possessive nature for those things. और इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को इस चीज का मालिक नहीं समझते और उसका मालिक हम परमेश्वर या यीशु मसीह को बना देते हैं. Sometimes it is some small things also which are very precious to us. कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम बहुत कीमती समझते हैं. How we can say it is precious? Because they are touchy about it. और हम क्यों कहते हैं कि हम इसके बारे में हम बहुत कीमत रखते हैं? क्योंकि हम बहुत ही जल्दी उसके बारे में चिढ़ जाते हैं. So I remember there was a very nice shirt, quite costly. I think my wife has bought it, but it was a very good shirt, white, and there was some print on it, but I liked it so much. तो मुझे याद है कि मेरा एक ऐसा शर्ट था जिसको मैं बहुत कीमती समझता था और मैं उसे बहुत चाहता था. I should always tell, don't wash anything along with that, because I didn't want it to get stained with any color. और मैं हमेशा ऐसे कहता था कि इस चीज को दूसरे कपड़ों के साथ मत धोया करो क्योंकि उस पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए. I was over sensitive about that. और मैं इस बारे में बहुत ही ख्याल रखता था और इस बारे में बहुत ही चिंता रखता था. So that was, I valued it so much that was one of my possessions. तो वो मेरे लिए एक कीमती चीज थी. But you know what happened to that? That one day when I went to Pune, that in my bag, that bag got robbed, and that shirt also went off. लेकिन एक बार ऐसे हुआ जब मैं पुणे गया तो मेरे बैग में वो शर्ट था और वो उस बैग की चोरी हो गई. So that's the end of the story of that shirt. तो ऐसे वो कहानी उस शर्ट के बारे में खत्म हो गया. So I realized that the things that we value so much ends like that only. तो कई बार ऐसे होता है कि मैंने समझ लिया कि कई बार जिन चीजों से हम इतना प्रेम रखते हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाता है. So the Apostle Paul was the one who was all out in, and he says in Philippians chapter 3 that I count all things to be loss in view of the surpassing knowledge of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish in order that I may gain Christ. और प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि वरन फिलिपियों 3 का 8वां वचन में वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ. So brothers and sisters, when what happens is then Jesus becomes more precious and he becomes the foremost. Just like Paul, Apostle Paul, Jesus was the foremost in his life. The same thing happens to us. तो अगर ऐसा हमारा मन भी है जिस प्रकार जो प्रेरित पौलुस का था तो हम
और सब बातों को पूरा समझेंगे और यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी चीज का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। Now, in the same verse, in the same chapter, chapter 14, Luke chapter 14, verses 28 to 32, Jesus speaks about another matter, saying about counting the cost. और हम लूका 14 अध्याय और उसका 32 28 to 32. 28 से 32 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ प्रभु ने किसी To count the cost. कि हमें हिसाब लेना चाहिए इसके बारे में कहा है। So now we see the three conditions. We have considered the three conditions, and Jesus is saying, now you sit down. The right person, the person who hears this will should be like the person who counts the cost. You know, when he wants to build something, and if person wants to build something, he will count the cost. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि जो भी किसी बात को या किसी जैसे महल को का निर्माण करना चाहता है, वो पहले बैठकर खर्च उस पर कितना खर्च होगा वो उसका हिसाब वो लगाता है। So now what we have got before us is about following Jesus as his disciple. तो जो बात हमारे सामने है वो है कि क्या हम यीशु मसीह के शिष्य बनकर जी सकते हैं कि नहीं। So Jesus is saying, consider the cost. यीशु कह रहे हैं जो खर्च या कीमत है इसका हिसाब लगाओ। And then if you are willing to pay the cost, then you can be my disciple. और अगर तुम इस कीमत को चुकाने के लिए सामर्थ्य हो तभी तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। So he doesn't call people say, oh no, you just come and follow me, just come and follow me. He says, you count the cost and then follow me. तब जब यीशु किसी को अपने शिष्य के रूप में बुलाता है तो वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे चलो, लेकिन वो ये भी साथ में कहते हैं कि तुम अपना जो कीमत चुकाना है उसका तुम हिसाब लगाओ और फिर मेरे पीछे चलो। So we will find it difficult and inadequate to fulfill these conditions. तो स्वाभाविक रूप में ये हमारे द्वारा ये हम इसके लिए काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। Though we love Jesus very much, we are inadequate to follow these conditions. हम यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे में ये योग्यता नहीं है कि हम इस कीमत को चुकाएं। So hearing this, we can be like two types of disciples. और इसके बारे में सुनने के बाद हम उन दो शिष्यों के समान हो सकते हैं। दो प्रकार के शिष्यों के समान हो सकते हैं। So here is the first type. जो पहला प्रकार का है John chapter 6 verse 66. यूहन्ना 6 का 66. So when Jesus was speaking so many things to the people and to the disciples, it says in John 6:66, as a result of this, many of his disciples withdrew because there were some hard sayings and were not walking with him anymore. तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे कठिन बातों को यीशु दोहराते हैं जिसके कारण 6 के यूहन्ना 6 का जो 66 वर्स है वहाँ ऐसे लिखा गया है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। So then Jesus looked at the 12 and said, "What about you? You also want to go?" तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? And Peter spoke for them. You can say, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." तब शमौन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। So this is the response
we will have when we want to become a disciple of Jesus. Lord, you have the words of eternal life. तो अगर हम शमौन पतरस के समान प्रत्युत्तर देंगे तो हमारा भी यही उत्तर होगा कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। So that is what Jesus is about. He's a pearl of great price. क्योंकि यीशु मसीह एक बहुत ही कीमती हीरे के समान है। And though we are inadequate, He is able to help us. क्योंकि अगर हमें वो योग्यता नहीं है, फिर भी यीशु मसीह इसमें हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। So at such times, there is a wonderful prayer we can pray. तो तब हम ऐसे समय में हम एक ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। This prayer is, I've just I've displayed it here. It's by a person called F.B. Meyer. और इसको मैंने इस कहावत को मैंने यहाँ दर्शाया है, जो F.B. मेयर करके प्रभु के दास ने कहा था। It says here, I can't say I'm willing, Lord, but I'm willing to be made willing. मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इच्छुक हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ कि आप मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं इच्छुक हो जाऊँ। We will just put that in Hindi also. और तो हिंदी में इसका ये अनुवाद है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मैं तैयार होने के लिए तैयार हूँ। So, brothers and sisters, this prayer has changed many lives. और इस प्रार्थना ने बहुत सारे जीवन में परिवर्तन लाया है। I believe so, and it has changed my life. और इसने मेरे जीवन को भी बदला है। So when we say, Lord Jesus, you are so great and I'm willing to be made willing, then He takes it up. और जब हम कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ कि आप मुझे तैयार करें इस बात के लिए, तब ये हो सकता है हमारे जीवन में। The meaning of this prayer is that, Lord, I'm willing that to be made willing. That means, God, if you work in me, then I'm willing to hate my father, mother. I'm willing to take up my cross. I'm willing to give up all my possessions, which is a difficult thing for most of us. That God makes it easy for us when we submit it to God. और हम प्रभु से कहें कि प्रभु, अगर आप मुझ में कार्य करेंगे तो मैं तैयार होने के लिए तैयार हूँ, और प्रभु इस असंभव चीज को हमारे जीवन में संभव कर सकता है। Philippians 2:13 says, "For it is God who is at work in us, both to will and to do and to work for His good pleasure." क्योंकि फिलिपियों की दूसरे अध्याय और उसके 13वें वचन में कहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So, brothers and sisters, this is the life that God has called us. It's a challenging and wonderful life, and that is to be a disciple of Jesus. और ये जो बुलावट जो हमें परमेश्वर ने दिया है, ये बहुत ही सुंदर बुलावट है, और ये बुलावट परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार दिया है हमें। As I've said before, the true Christian life starts when our life is surrendered. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो क्रिस्ती जीवन तभी शुरू होता है जब हम अपने जो जीवन को समर्पित करते हैं। And that's the time when we know Jesus and love Jesus the most. तभी हम यीशु मसीह को पूरे दिल से और मन से प्यार कर सकते हैं। I normally speak about very encouraging messages like God's love and things like that, and but the background of all that is this message.
मैं हमेशा साधारण रूप से मैं प्रोत्साहित करने वाला जो प्रचार करता हूँ, जो जैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, इन बातों के बारे में मैं कहता हूँ, लेकिन इन सब का जो नींव है वो यहीं पर शुरू होता है जो आज मैंने बताया। Without this background, all that would be just flimsy love. और इस नींव के बिना जो भी हम प्यार के बारे में या परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बात करते हैं, वो बिना नींव के और बिना जड़ के जैसा कोई बात हो वैसा ही होगा। So may God help us to fulfill this calling of becoming a disciple. Our whole lifetime says to become more and more like Christ. और ये जो हमारा जो बुलावट है कि हम यीशु मसीह के शिष्य बनकर जिए और उनके स्वरूप में बदलते जाएं, इसी बुलावट को हम कीमती समझे और उनके पीछे चले। भाई मैथ्यू ने बांटा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। So I thank God for the encouraging words shared by Brother Matthew. और उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि डिसाइपल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। And he explained very nicely that what it is to be a disciple. बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन हो जाते हैं, यीशु को मानना मतलब बेसिकली हमारा कॉलिंग क्या है, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग खुद को बिलीवर कहते हैं और कुछ लोग विश्वासी कहते हैं और कुछ लोग अपने आप को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। बट जैसे भाई ने कहा कि हमको जो प्रभु यीशु ने बनने के लिए बुलाया वो कॉलिंग ओनली है डिसाइपल। So a lot of people are confused as to what is their calling in life. So some call themselves believers, some call themselves something. But ultimately the thing is we are all called to be disciples of Jesus Christ. ये मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में हम पढ़ सकते हैं। And we can read that in Matthew chapter 28. वहाँ यीशु मसीह कहता है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है, इसीलिए यीशु वहाँ पे कमांडमेंट देता है। एंड दिस इज अ लास्ट कमांडमेंट जो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि गो एंड मेक डिसाइपल। Brother, which verse? Matthew 28 verse 18. Yeah, in Matthew 28 verse 18, Jesus gives this last command to his disciples. And he says that all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations. तो वहां पर यीशु मसीह का आखिरी कमांडमेंट है कि अपने शिष्यों को जाके शिष्य बनाओ। And this is the last commandment which he gives to his disciples, that go and make disciples. तो यहाँ पर यीशु क्लियरली स्पष्ट रूप से कहता है कि उसको डिसाइपल चाहिए। So what here Jesus has clearly said that he wants disciples. तो हमको अपना कॉलिंग बहुत जानना जरूर है कि प्रभु ने हमको एज अ बिलीवर करके नहीं बुलाया। हम स्टार्टिंग में बिलीव करके प्रभु में आते हैं, मिरेकल देखते हैं, बहुत कुछ चीज होता है, बट हमारा मेन गोल यही है कि हर दिन हम प्रभु जैसा बनेंगे और उसका डिसाइपल बन सके। So when we come to the Lord, we come as believers, looking at some miracles or some work which God has done in our lives. But the ultimate goal for us is to become disciples of Jesus Christ. मैथ्यू ब्रदर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एक बिलीवर सिर्फ बिलीव करता है, सब अच्छे चीज उसके लाइफ में होता है, बट फॉलोअर्स या डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट वो डिफरेंट होता है, जो यीशु के पीछे हर दिन चलना चाहता है। So a believer is one who believes and with the things that happens in his life. But a follower or a disciple is a one who actually follows Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 7 में कि उस दिन में बहुत सारे लोग आके कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु। दे ऑल आर बिलीवर्स, मतलब वो लोग विश्वासी है, इसीलिए वो प्रभु करके उसको पुकारते हैं, हे प्रभु। एक अनबिलीवर यीशु को प्रभु करके नहीं पुकार सकता, बिकॉज वो उसको जानते ही नहीं। In Matthew chapter 7, we read that there are people who call out to Jesus, Lord, Lord. So, but the Lord says that he doesn't even know them. तो ये जो प्रभु उनको पुकारते हैं, ये कौन है? ये यीशु को जानने वाले बिलीवर है, जो एक समय प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे। ये ऐसे लोग हैं।
So who are these people who are calling Lord, Lord? These are those people who who know the Lord, who had believed in the Lord. और इतना ही नहीं, वो वहां पर लिखा है वो यीशु के नाम से बड़े बड़े काम भी करते हैं, चमत्कार चिन्ह करते हैं, अद्भुत काम भी वो करते हैं यीशु के नाम से। And not just believing, but these are also those people who have done amazing work in the name of the Lord, like doing miracles and other things. लेकिन यीशु उनसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। But Jesus tells them that I do not know you. लेकिन यीशु किसको जानता है? वो बोलता है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा शिष्य है। But who is the one who Jesus says that he knows him? It is the one who does the will of God. डिसाइपल मतलब मैथ्यू ब्रदर ने बहुत सारे बातें कही, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बट उसका इन शॉर्ट अगर हम देखने जाए तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं मैथ्यू 28 के 18 में 19 वचन में वहां पर लिखा है कि सब जातियों के लोगों को अपना चेला बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी वो उन्हें मानना सीखो। सो मीन्स जो कुछ भी प्रभु यीशु हमें सिखाता है और प्रभु का वचन हमें कहता है, जब वो मानते हैं, हम उसका पालन करते हैं, दैट इज अ ट्रू डिसाइपल। So Brother Matthew shared a lot of points with us as to how we can be a disciple of Christ, and to sum everything up, we would be when we read in verses from Matthew chapter 28 verses 19 and 20, where he says that go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. So जो it कुछ भी is प्रभु यीशु yeah, so it is about so he says that they have to do the commandments of God also. तो ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी यीशु से हमें ज्ञान मिलता है, रेवलेशन मिलता है, हम उसको फॉलो करें। So it is very important, whatever knowledge and revelation we receive from the Lord, that we should follow it. और वही एक सच्चा डिसाइपल है, जो कुछ भी प्रभु से वो सुनता है। हर एक के लाइफ में प्रभु अलग से बातें करता है और हर एक को प्रभु अलग रीति से चलाता है, और अगर जो व्यक्ति से प्रभु जो बातें करता है, अगर वो उस बातों में विश्वास योग्य रहा, सो ही इज अ ट्रू डिसाइपल। So a true disciple is one who obeys what the Lord tells him to do, and the Lord talks to everyone in different ways, and it is the true disciple is the one who walks in the light with the Lord shows him. तो और डिसाइपल हर दिन सीखता है नया नया चीज, हर दिन प्रभु उसको सिखाता है हर एक बातें, और वो सीख कर वो बढ़ते जाता है। इट इज नॉट कि एक दिन या 2 दिन में हम डिसाइपल बन के खड़े हो गए, प्रचार करने लगे, ऐसा नहीं है। हर दिन परमेश्वर जैसे हम यीशु में आते हैं, धीरे 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 हमारी लाइफ में प्रभु जो सिखाता है, और वैसे वैसे सीख कर हम प्रभु जैसा धीरे धीरे बन सकते हैं। And a disciple is one who learns something new each day. One cannot become a disciple. It's not a work of 1 or 2 days, but it is something that a person learns something every day. मत्ती अध्याय 5 के स्टार्टिंग में एक अच्छा उदाहरण है, वहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह पहाड़, बड़ी भीड़ को देखता है और पहाड़ पर चढ़ जाता है। In Matthew chapter 5, in the beginning of the chapter, we read that when Jesus saw the crowd, he went up on the mountains. और वहां पर लिखा है जब वो भीड़ को देखा, वो पहाड़ पर चले गया और वहां ऊपर एकदम जाकर वो बैठ गया और उसके चेले उसके पास है। So over here we read that he went up on the mountains and he sat over there, and it was his disciples that came to him. देखो बड़ी भीड़ नहीं आई, वहां पर उसके चेले आए, और जब चेले यीशु के पास आकर बैठ गए, वहां पर लिखा है यीशु उन्हें उपदेश करने लगा। And it was not the crowd that came up on the mountain and sat with Jesus. It was his disciples who came over there and sat with him, and it is then that Jesus began to teach. क्राउड भी वहां बैठी थी, लेकिन ये जो यीशु के शिष्य थे वो उनके एकदम नजदीक जाकर, और जो कुछ भी यीशु कह रहा था वो ध्यान से वो सुन रहे थे। It was not even the crowd was there, but it was the disciples that was sitting closest to Jesus and listening to him closely. तो यीशु का जो शिष्य है वो हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहता है, एक फेलोशिप में रहता है, और जैसे वो फेलोशिप में रहता है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं यीशु
मुंह खोलकर उन्हें उपदेश करता है। एवरी डे गॉड विल स्पीक टू दैट डिसाइपल, मतलब वो जैसे परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, एवरी डे गॉड उसको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, उनके लाइफ से कुछ ना कुछ रिवील करेंगे, और इसी रीति से वो डिसाइपल धीरे धीरे सिद्ध बनते जाता है। So it is the disciples are the one who have a close fellowship with the Lord, and it is to such a person when he is close to the Lord that when the disciple is close, that the Jesus begins to teach. और यीशु ने जो सबसे मुख्य चीज हमको सीखने के लिए बुलाया है, यीशु कहता है कि लर्न फ्रॉम मी, कि मैं कैसे नम्र हूँ और कैसे दीन हूँ। And the most important thing that Jesus wants us to learn from him is where he says that learn from me that I'm humble in heart. अगर हम हमारे अंदर जैसे ये नम्रता और ये दीनता अगर प्रभु जैसे हमारे अंदर लाता है और हम ऐसे बनते जाते, तो बाइबल कहता है जब जो दीन है या नम्र है उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह रहता है, और कोई पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। And it is the Bible tells us that it is the humble ones who have the grace of God upon them. And और क्या बोला ब्रदर आपने? और कोई जो नम्र है उनको प्रभु का अनुग्रह मिलता है, और कोई पाप, जैसे रोमियो अध्याय 6 में लिखा है, नो सिन कैन हैव डोमिनियन या पावर ओवर अस। And the ones who are ones who are humble, God's grace is upon them, and like it says in Romans 6 that the sin cannot have dominion over them. तो हर दिन हम प्रभु के साथ जैसे समय बिताता है, वो हमको और नम्र बनाता है, उसके जैसा बनाता है, और धीरे धीरे जो क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है, ये सब कोई एक बर्डन नहीं होगा, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा ही होगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा हम कर रहे हैं। कोई हमको कुछ गाली दे रहा है या कुछ भी बोल रहा है या कैसे भी रह रहा है, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा एक स्वभाव बनेगा। So when we are humble in this manner, taking up our cross and walking every day in spite of what anyone says to us or says bad things about us, it will not be a burden anymore because it will become a part of our nature. तो यही चीज प्रभु चाहता है कि ये कोई हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये करना ही है, क्रूस उठा के चलना ही है, ऐसा ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे जैसे हम प्रभु के साथ अपना जीवन बिताते हैं, किसी का बुराई नहीं करो, किसी के बारे में गंदा मत बोलो, ये हमारे लाइफ, कोई हमारा बुरा करता है तो भी हम उनके लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। ये कौन करता है हमारे अंदर? ये पवित्र आत्मा करता है, और यही धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। So then how do we do all of these things that when somebody says bad things about us, we will still bless the person, pray for that person? How do these changes happen in us? It is through the Holy Spirit that that these things become a part of our nature. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन हमेशा याद रखना कि हमारे अंदर अच्छे काम करने वाला प्रभु था, हम नहीं है। हमारे अंदर प्रभु ने इसकी शुरुआत की, और वही बाइबल कहता है वही इसे पूरा करेगा। तो हमको ये ज्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है चीज के ऊपर। अगर हम ट्रूली प्रभु के पीछे विलिंगली आना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सच्चा डिसाइपल बने, तो सचमुच प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, और वही उसने काम शुरू हमारे अंदर किया और वही उसे पूरा भी करेगा। So brothers and sisters, we should always remember this, that whatever work is happening is that it is not us doing it, but the Lord doing it, and he who has began a work in us will also finish it, as it says in the Bible. और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको जो बुलाहट से बुलाया है, वो जो डिसाइपलशिप के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उसका कार्य हम सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रभु कर रहा है। हाँ, बहुत कमियां हमारे अंदर है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है, हम बढ़ते हैं और एक उसके साथ चलना चाहते हैं। यही एक सच्चा हमारा लाइफ का टेस्टिमनी है जो प्रभु हम सबके जीवन से चाहता है। और जैसे आखिर में भाई ने जैसे बांटा कि शायद हम विलिंग भी नहीं करते होंगे, लेकिन प्रभु से हम ये प्रार्थना करते, प्रभु ये हमारे अंदर एक विलिंग चाहिए कि हम विलिंग कर सके कि ऐसा एक लाइफ हम जी सके। So we all have this calling to be disciples of the Lord, and although we may have a lot of weaknesses and we may fall, but the God who has began a work in us will also finish it. And just as brother shared in the last part that we may not be willing, but even to be made willing, even if we are willing to be made willing, then God will still continue to do his work in our lives.
Thank you, Brother Matthew, for sharing such a wonderful teaching. और बहुत सारे लोग ऐसे बांटते नहीं है जैसे उन्होंने कहा कि डिसाइपलशिप के बारे में बहुत सारे प्रचार हम सुनते हैं अलग अलग बातों के ऊपर, बट ट्रूली जो यीशु ने हमको आज्ञा दिया है वो है टू मेक अ डिसाइपल, और यही हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए और हमारे लाइफ का कॉलिंग भी यही है. हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया. एक ही उसका रीजन है कि हमें डिसाइपल बनने बुलाया और हर दिन प्रभु उसके लिए हमारे अंदर काम कर रहे हैं. What we read in Luke 14:28 is that we must count the cost before we take up the discipleship. और हमने लूका अध्याय 14 के 28 में जो पढ़ा है, हमें सबसे पहले बैठकर हिसाब जोड़ना और मूल्य लगाना कि हमें कितनी कीमत चुकानी है चेला बनने के लिए. So 29th verse says that if you don't do that, what will happen is, you will lay the foundation and you won't be able to build. You won't be able to have the cost to build further. और आगे 29वां वचन कहता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वचन 29 कहता है कि हम नींव तो डाल चुके होंगे लेकिन आगे उसे पूरा करने के लिए हमारे पास आगे खर्च करने के लिए मूल्य नहीं होगा. So Jesus is very transparent in this. If you want to be a disciple, you have to really understand the full course, the beginning to end. You must be very clear about what it cost you. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह साफ साफ बात करता, पूरी तरह से इन बातों को पारदर्शी करके हमारे सामने रखते हैं कि यदि तुम चेला बनना चाहते हो और इस बात को करना चाहते हो तो वास्तव में जो मूल्य है, जो कीमत चुकानी है, वह क्या है. Otherwise, after laying the foundation, which is repentance, faith and all, you won't be able to go further, which is when some persecution comes, when problems comes, because of your faith, you lose your job or, you lose some things, or then you will not be able to stand. क्योंकि जब हम नींव डाल लेते हैं, नींव डालने का अर्थ होता है कि हम मन फिरा लेते हैं और विश्वास करने लगते हैं, लेकिन यदि हम आगे के लिए जो कीमत चुकाने उसका हिसाब नहीं जोड़ लेते हैं तो जब मसीह के नाम के निमित्त और उस पे हमारे जो विश्वास है उसके कारण यदि हमारी ताड़ना की जाती है, हमें सताव आता है या हमारे काम के क्षेत्र में हमें वहां पर निकाल दिया जाता है, तो ऐसी परीक्षाओं के बीच में हम खड़े नहीं रह पाएंगे. But Paul says about himself that I consider everything as a dung when I consider the excellency of the knowledge of Christ. लेकिन हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते कि वो कहते हैं कि मसीह के ज्ञान की पहचान को प्राप्त करने के सामने वो हर एक सारी बातों को वो कूड़ा समझते हैं. What Paul says is that I consider every cost I have to pay to be a disciple of Christ is nothing compared to the greatness of the discipleship of Christ. इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस ऐसा कहना चाहते हैं कि मसीह का पहचान, ज्ञान की पहचान प्राप्त करना, यानी कि उसका चेला बनने का जो मूल्य है वो उसका चेला बनने के सामने कुछ भी कीमत नहीं है. That means when you start this journey, you may find it may look very expensive and very costly for you, but as you progress, you will find that this cost you pay is nothing compared to what you are going to gain. इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप मसीह के चेला बनने की इस यात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगे और उसमें आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो आप जो छोटी छोटी बातों की कीमत चुकाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो पिछले जो कीमत किसी बात के लिए चुकाई है वह कुछ भी नहीं है जो आप बनना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं. That is what Jesus said in the parable of the hidden treasure. The one who is going to sell all that he has and is going to buy the field, but what he gets after buying the field is nothing, far, far greater than the cost he paid. और हमने यही दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया कि वो जमीन में छुपे हुए धन के खजाने के समान. उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति ने वो उस पूरे खेत को मोल लिया और उसको मोल खरीदने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन वह कीमत उस खजाने के सामने जो उसे बाद में मिलने वाला था कुछ भी नहीं है. So we heard that one of the conditions of discipleship is a fully surrendered life. और हमने एक और जो शर्त लागू होती है मसीह का शिष्य बनने के लिए, उसका चेला बनने के लिए, वह एक और शर्त यह है महत्वपूर्ण कि हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देना. That means Jesus owns everything we have, everything, nothing. We own nothing and he owns everything. इसका मतलब है कि हमारा जो मालकाना हक है वह हम अपने अधिकार में नहीं रखते, परंतु वह सारा मालकाना हक हम परमेश्वर को दे देते हैं. Brothers and sisters, many years back, God spoke to me about this aspect very powerfully.
अब भाई बहनों, बीते वर्ष कुछ समय पहले, वर्षों पहले परमेश्वर ने इस विषय में बहुत ही दृढ़ता के साथ में परमेश्वर ने मुझसे बात किया था। That day I surrendered all that I have, my family, my money, everything, in a wholehearted way to the Lordship of Jesus Christ. और उस समय भाई और बहनों, मैंने निर्णय लिया और जो कुछ मेरे पास था, मेरे अधिकार में था, वह सब मेरे परिवार तक सारी बातों को मैंने परमेश्वर के उस प्रभुता के अधीन में मैंने सौंप दिया। That one prayer we continuously pray almost every day is that, Lord, we are your property. और हमारी प्रार्थना में एक ऐसा विषय जो हम हर रोज के हमारे हर प्रतिदिन की प्रार्थना में जो हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी वह संपत्ति हैं। It may look a very expensive affair for each one of us, surrendering all that we have into the hands of God. और ये हमारे लिए बहुत ही कठिनाई भरा जान पड़ता है कि हमारे हर एक बातों को और हमारे पास जो कुछ भी उन सबको परमेश्वर को सौंप दे। When you start doing it, you will know that the mystery of that greatness, excellency unfolds in your life. लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तब आप पाएंगे कि जो कदम आपने उठाया उसके पीछे जो रहस्य की बात और जो महिमा में जो अद्भुत जो आशीष है वह कितना बड़ा है। Then you will be able to say, as Paul said, when I continue to surrender everything I have, I found that the other life is nothing, garbage in front of this surrendered life. और जब आप ऐसा करेंगे तब आप भी पौलुस के समान ऐसा कह पाएंगे कि जो भी कीमत आपने अपने जीवन में मसीह को और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चुकाई है, वह उसके प्राप्त करने की तुलना में कुछ भी नहीं है। Just imagine you are the property of Lord Jesus Christ, the Almighty God. और आप कल्पना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के यीशु मसीह के आप संपत्ति हैं। You might have seen, some government properties, or the property belongs to some army or navy, where a board is there. This property belongs to the Indian Navy, and trespassers will be prosecuted. और जैसे कि हमारे आसपास हम देख सकते हैं जो संपत्ति होती है, जो जमीन होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उस पर जैसे कि कोई आर्मी या जो सेना या नौसेना से वो जो जल सेना की यदि वो प्रॉपर्टी है तो उस पर लिखा होता है कि यह भारत सरकार नौसेना की यह संपत्ति है और कोई भी इस पर कुछ करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। It may look like any other property, but you just try to trespass it, then you will know who is behind that property, the power of the ownership behind it. आपको ऐसे आप उसे हल्के में जान सकते हो, उस बोर्ड पर जो नाम लिखा है कि यह किसका है और इसका मालिक कौन है, लेकिन जब आप उस पर कुछ करना चाहेंगे और जब उसका जो मालिक है जब वह आप पर कार्रवाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस मालिक कितना सामर्थ्य है। The maintenance of that property, the well-being of that property, everything is owned by the owner. He takes responsibility for that. उस जमीन का जो मालिक है, उस जमीन की रक्षा करना, रखवाली करना, उसकी देखभाल करते रहना, वह सारा जो जिम्मेदारी है वह मालिक खुद उठाता है। When you become the property of Lord Jesus Christ, and just imagine what a change that happens to your life. और जब आप परमेश्वर यीशु मसीह की संपत्ति बन जाते तो आप कल्पना करें कि किस प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। Can anyone trespass into you? Can Satan trespass? Can anything trespass? क्या कोई भी बात या शैतान आपके साथ कुछ कर सकता है? क्या आपको हानि पहुंचा सकता है? God says about Israel is the apple of my eye. Anyone touches you, touches the apple of God's eye. और परमेश्वर ने वचन में कहा इजरायलियों के विषय में कि इजराइल मेरे आंख की पुतली के समान है, जो भी इजराइल को हाथ लगाएगा वह मेरे आंख की पुतली को हाथ लगाने के समान होगा। So that is the kind of change that happens to you when you fully surrender your life and your property, everything you have into the hands of Jesus. It may look very, very, very ordinary thing, but it is highly extraordinary. और ऐसे ही जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तब हमारा जीवन बाहरी रूप से साधारण जान पड़ता होगा, लेकिन वह परमेश्वर की प्रभुता की अधीनता में आ जाता है। When God reveals this mystery to you, then you will not have any other prayer to pray other than to pray, Lord Jesus Christ, I am your property. You own me.
और जब आपको इस महिमा में बात का प्रकाशन परमेश्वर देंगे, तब आपकी कोई और प्रार्थना नहीं होगी, आप केवल यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम आपकी निज संपत्ति हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। We all have very precious things in our homes, very expensive things. Those expensive things we don't keep in our home. We don't trust ourselves with our own expensive things. और हमारे घरों में कई सारे कीमती वस्तु को हम रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वह वस्तु इतनी कीमती है कि हम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाते कि वह घर में रखें। We keep it in some lockers. We trust somebody else who is stronger than us to safeguard our valuable property. और कई बार हम अपने आप पे भरोसा न रखने के कारण हम उससे बैंक लॉकर्स में रखते हैं कि हमसे जो ज्यादा शक्तिशाली है वह हमारी सबसे ज्यादा कीमती चीज की रखवाली करे। So how much precious is our life, our children, our wife? How can you keep it with us? You keep it in the hands of Lord Jesus Christ, which is the strongest power on this earth. तो हमारा जो आपका जो जीवन है, आपके परिवार है, जो आपका पति पत्नी बच्चे या माता पिता, उनका जीवन कितना मूल्यवान और कितना कीमती है, आप उसे अपने पास कैसे रख सकते हैं संभालने के लिए? आप उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। That's why it says, the laws of God are for your good. क्योंकि इसलिए वचन कहते हैं परमेश्वर की जो वचन है उसकी व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी है। It is not to take away your life, it is to give you life in abundance. वह ऐसा नहीं आपका जीवन आपसे ले लेने की है, परंतु बहुतायत से आपको जीवन देने के लिए है। I am very excited by this life. Every day my life is becoming more and more excited. The more I surrender, the more life becomes excited, because I am the one who is responsible for me is the Almighty God. और मैं अपने जीवन में पाता कि मैंने जैसे जैसे इस बात को रहस्य को जाना है, मेरा जीवन दिन प्रतिदिन और ज्यादा उत्तेजित होते जाता है परमेश्वर की ओर। John 10:10 says, the thief comes to steal and kill and destroy, but the Son of Man has come to give you life and life in abundance. कि जैसे यूहन्ना अध्याय 10 का वचन 10 कहता है कि चोर इसलिए आते कि वह नाश करे, घात करे, चोरी करे, परंतु परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए आए कि वह जीवन दे और बहुतायत से जीवन दे। When Israelites left Egypt, the spirit of death came and killed every firstborn of the Egyptians. और हम पढ़ते हैं वचन में कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने पर थे, तब मिस्र देश में और हम पढ़ते so against when against Israel, Bible says that not even a dog could dare to move its tongue. और हम आगे इजरायलियों के विषय में पढ़ते हैं कि जब वे निकलने पर थे तो मिस्र में से कोई एक कुत्ता भी इजरायलियों के विरोध में नहीं भौंक सका। That's the kind of life your life is going to be. Our life were not owned by anyone. Anybody could trespass into our property, but today our property is owned by the Almighty God, and anyone, no one will ever dare to touch us without His permission. और उस समय ऐसे नहीं था कि कोई भी चाहता तो हमारा जो शत्रु हो या कोई भी बाहर से हो, हम जो संपत्ति है हमारी, उस पर कोई भी हाथ डाल सकता और उससे हानि पहुंचा सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करते हुए रखते हैं। No sickness, no problem, nothing can come us. Anything that happens to us will be with His permission, with His knowing permission. कि कोई भी हमारे जीवन में जो तकलीफ है, समस्या या कोई भी बीमारी है, वह बिना परमेश्वर की अनुमति के हमें छू नहीं सकती। यदि हमारे जीवन में वह आया है बात, तो यह परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही हुआ है। Pray that God will give us, open our eyes to see this greatness of the laws of God. अब परमेश्वर ऐसी सहायता करे कि हमारी आंखों को खोले और यह प्रकाशन हमें दे, परमेश्वर की उस वाचा की व्यवस्था की उसको प्रकट करे हम पर। तो चेले बनने का जो कीमत है, तो हम बाइबल में लूक चैप्टर 14 और 26, 27 और 33 में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। मैं यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी बड़ी भीड़ को देखकर 3 बात कहा। वचन 26 में कहा कि लास्ट में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि एक जगह पे मेरे चेले नहीं बन सकता, वचन 26, और वर्स 27 में भी लिखा है कि वहां पर भी लिखा है कि वह मेरा चेले नहीं बन सकता है, और 33वां वचन वहां पर भी लिखा है कि मेरे चेले नहीं बन सकता।
तो ये इसके बारे में मैंने सोचा, प्रभु ने मेरा मन में कुछ सोच डाला कि जैसे कि अगर आप जमीन पे एक बीज बोते हो, आपको पता होना चाहिए कि वो अकेला बीज एक दिन बढ़कर वो कितना फल लाएगा। जब आप उस फल के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो उस बीज का ख्याल रखेगा। जैसे कि अब बीज बोया, लेकिन उस बीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ना पानी दिया, ना उसकी बढ़ने के लिए कोई काम नहीं किया, तो आगे जाकर वो बीज बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो फल नहीं मिलेगा, उसका कीमत आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आपको पता चला जो जमीन के अंदर मैंने बीज बोया है, वो बीज एक दिन बड़ा सा फल, मेरे लिए बड़ा सा लाभदायक होने वाला है, तब उस बीज के बारे में आप सोचेंगे, उसके पीछे आप काम करेंगे। तो उसी तरह यीशु के पीछे चेले बनने का अर्थ है कि हम उस कीमत को जानना है। फिलिपियंस 3:7-8 में पौलुस कहता है कि उसके पास सब कुछ था, पौलुस के पास, लेकिन सब कुछ उसने मसीह के कारण बोला कि ये सब मैं ये जो कुछ मेरे पास है वो सब मैं अपने लिए नुकसान समझता हूँ। मेरा धन दौलत, यानी मेरा संपत्ति, मेरा अधिकार, मेरा जन्म का, या जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मसीह के कारण। किसके कारण? मसीह के कारण मैं सब चीज एक कचरे के डब्बा में जैसा डालते हैं कचरे का डब्बा, वैसा मैं समझता। तो हमारे जीवन में यही मकसद होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मसीह का प्रेम से ज्यादा नहीं, या मसीह से ज्यादा कीमती नहीं। जैसे कि प्रभु ने मुझे भी अगुवाई किया कुछ साल पहले कि अगर आप चेले बनना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, कुछ चीज त्यागना पड़ेगा आपको। जैसे कि गांव में एक ऐसा घर है मेरा पिताजी का, उसका हकदार मैं हूँ, और लोग सोचेंगे कि ये हकदार है। मैं गांव जाते हैं ना, तभी लोग सोचे कि ये हकदार है। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपके पीछे चलने का अर्थ क्या है? कभी कभी हम संसार की कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है, तो वो चीज को पकड़ के रहेंगे हम, इसमें मसीह जीवन में जी नहीं पाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि कुछ चीज है जो बहुत लाभदायक है मेरे लिए, बहुत लाखों रुपए के लाभदायक है, लेकिन प्रभु ने बोला कि छोड़ दो। तो हम लोग छोड़ने के लिए प्रभु ने ताकत भी दिया, सामर्थ्य भी दिया। ये चीज मैं आपको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ कि कई बार हम कुछ चीज छोड़ते नहीं, हम पकड़ के रहते हैं। प्रभु का वचन बोलते हैं कुछ चीज छोड़ दो। वचन 33 में लिखा है कि जो कुछ आपके पास है वो सब अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मेरे चेले नहीं बन सकता है। ये हो सकता है कि आपकी धन दौलत, अपनी, या एक अच्छा अधिकार, या ऑफिस में आप अच्छा अधिकार में हो सकते हैं, या कोई काम की जगह में अच्छा पोजीशन हो सकता है, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु का वचन बोलता है अगर आप छोड़ेंगे नहीं, प्रभु से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब पतरस अपना जीवन जीने के लिए उसके पास एक चीज थी, एक जाल थी, और उसको पता था प्रभु यीशु को ये इसी के द्वारा उसका जीवन चलने वाला है, लेकिन पतरस को बोला कि आप मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें मछुआ बनाऊंगा। तब पतरस ने जान लिया कि मसीह के पीछे चलने का कीमत क्या है। आप जानना चाहिए, मैं जानना चाहिए, सभी जानना चाहिए, मसीह के पीछे चलने का कीमत जो मेरे पास है उससे ज्यादा है। इसीलिए पतरस उस जाल छोड़ा और यीशु के पीछे चलने लगा। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि तो पौलुस कहता है कि मेरा एक ही मकसद है। क्या है वो? फिलिपियंस 3:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु को पाना मेरे जीवन का उत्तम चीज मैं समझता हूँ। आप और मेरे भी चाहत ये होना चाहिए कि मसीह यीशु मेरे जीवन में मिलना चाहिए, और उसके पीछे चलने के लिए मैं जो कुछ भी दाम चुकाना है मैं चुकाऊंगा। मैं अपना समय का दाम चुकाऊंगा, मैं अपना बुद्धि का दाम चुकाऊंगा, या मैं अपना सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से हम एटीट्यूड रखेंगे तो हम चेले बनने का एक योग्यता हम बनाएंगे। प्रेज गॉड। Being a disciple of God, परमेश्वर का शिष्य बनना, we all feel that we all are disciples of God in our own ways. और हम अपने हिसाब से अपनी रीति में परमेश्वर का शिष्य अपने आप को मानते हैं। That's why we give a lot of knowledge, lot of understanding
and teaching to others. इसलिए हम दूसरों को औरों को इस विषय पर हमारा जो ज्ञान है और हमारी जो समझ और अनुभव है उससे हम बांटते हैं. Because we think the calling is of us is like a disciple now. क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि हमारी जो बुलाहट है वह एक चेले के समान है. My question is, do you ever get angry or not? मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या आप कभी गुस्सा करते हैं? I do get. हाँ, मुझसे हो जाता है. Do you speak badly about others? Sometimes I do. क्या आप दूसरों के बारे में कुछ बुरी बातें कहते हैं? मुझसे यह होता है. Do you speak about people behind their backs? Yeah, I do. क्या आप लोगों के पीठ के पीछे उनकी बुराई करते हैं? हाँ, मुझसे वह होता है. Do you have any bitterness against anybody? Yes, I do. क्या आपके मन में किसी के प्रति बैर की भावना, कड़वाहट की भावना है? मुझ में है, मुझसे होता है. So I don't call myself as a disciple. इसलिए मैं अपने आप को शिष्य नहीं कहता. Because one thing I remember that when Jesus was telling that it's time for him to go and he is going to suffer, then Peter said, I won't let you go. And Jesus tells Peter that Satan, get behind me. क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं पतरस से कि वो कैसे पकड़वाए जाएंगे और उन्हें किस प्रकार से ताड़ना, उनको सताया जाएगा, ताड़ना होगी और वो कैसे चढ़ाए जाएंगे क्रूस पर, तब पतरस उन्हें जाने नहीं देता और तब यीशु मसीह पलट कर कहते हैं कि शैतान दूर हो जा, पीछे हट. The same Peter denied Jesus in public 3 times. और यही वह पतरस है जिसने लोगों के सामने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया. Because Jesus knew what he's going to do in flesh. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वह शरीर में क्या करने वाला है. But Jesus tells the same Peter that I build my church on this rock. लेकिन यही वह पतरस है जिससे यीशु मसीह कहता है कि यही वह चट्टान है जिस पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा. The reason why is not the outer thing that Jesus seen in him. It was the inner part, his heart, that Jesus seen. और कारण यह है क्योंकि बाहर का वह भाग नहीं जो हम देख रहे थे, परंतु भीतर का वह भाग है जो यीशु मसीह देख रहे थे. Paul, who was he? He was like a barbarian. He was a slaughter. अब प्रेरित पौलुस के विषय में यदि हम कहें तो वह एक बारबेरियन था. वह बहुत ही मसीही लोगों को सताने वाला व्यक्ति था. But he became the biggest name in the Bible. लेकिन वह ऐसा व्यक्ति बन गया कि सबसे बड़ा नाम बाइबल में हो गया. The reason why is this, that we see all our others, from the outer part and their behavior, what they do, and we keep pondering on them. और कारण यह है कि हम जो लोगों को देखते हैं वह उनके बाहरी तौर पर हम उन्हें देखते हैं और उसी से हम उनकी सराहना करते हैं. And we keep pondering on all the wrongs that they keep doing, all the things that they behave, in what way they say. और जो उनके भीतर का बात है और जो हमारे सामने नहीं रहता उस बात पर हम ध्यान नहीं करते. So does this makes us a disciple? तो क्या यह बात हमें चेला बनाती है? One thing I want to read from 2 Corinthians chapter 2 from verse 5 to 11. Brother, आप पढ़ो हिंदी में. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5 से आगे की ओर हम पढ़ते हैं. यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ कुछ बहुत कड़ाई न करो. कुछ तुम सबको भी उदास किया है. Brother, till which was brother I have to read? 5 to 11. ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है,
इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Because this is the plan that the devil works in us, of not forgiving others, and always to remind that person what he is, what his behavior is, what his attitude is, how he reacts and all. But one thing I want to say, in spite of everything on that cross, what Jesus begged, but Jesus still asked for forgiveness. Do we have that? A real disciple will have forgiveness. और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि शैतान का यही दाव हम पर चल जाता है जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते, और हम उस व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं, तौर तरीके, और वह किस रीति से प्रत्युत्तर देता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और इन सारी बातों पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं। परंतु यदि हम यीशु के शिष्य हैं तो वह क्रूस पर जो यीशु मसीह ने किया और उसका लहू जो करता है क्षमा, हम भी वैसे ही करते। If I don't have forgiveness in my heart for anyone, it means what kind of a disciple? और यदि मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति क्षमा का भाव नहीं है तो मैं किस प्रकार का चेला बन सकता हूँ। And one thing I want to say is this, like, whatever it is in my weakness, but I thank the God that His grace is sufficient for me. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे मेरी भले ही कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, कमी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। ब्रदर, आप पढ़ो 2 कोरिन्थियंस 12 9 से 11 तक, नहीं 9 से 10 तक। चैप्टर 12 वर्स 9 to 10। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 9 से 10 हम पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। So for me, God's grace is sufficient. Maybe I'm at the age of 53. If I see right now, I don't have a job, but I thank God. Another 53 years, God has supplied me and kept me, because that's His grace, and His grace is sufficient for me. और मैं कहना चाहता हूँ मेरे जीवन के विषय में कि परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से अनुग्रह दिया है, और जैसे मेरी अभी जो उम्र है वो 53 वर्ष की हो चुकी है, और मेरे पास अभी कोई फिलहाल के लिए काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह मुझे दिया है कि अब तक इतने सालों में परमेश्वर ने चलाया है। And this is what I want to say is that whatever we are, however we are, in spite of pondering it on others, let's have forgiveness, let's have compassion, let's show the love of Christ. That makes us a true disciples. Amen. God bless you all. अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि चाहे हम जैसे भी हों, जो भी हमने जो कुछ भी किया हो, और दूसरों पर बाहरी तौर पर उनके बातों को देखकर आरोप लगाने के बजाय मसीह का प्रेम जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हम उनसे भी प्रेम करने पाए, उन्हें क्षमा करने पाए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।